Hello everyone, good morning all of you. I hope you are fine. Today we are starting our next class of our in last class 11th physics we are doing there. Then our kinetic theory of the gases unit is started. Then in our next topic of this one kinetic theory of the gases, then yesterday we had done there a pressure exerted by the ideal gas molecule when we are keeping any container. तो कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किसी गैस मोलिक्यूल से किसी कंटेनर के अंदर, ये हमने किया था. Now today we will discuss about this one related this topic only, some points of this one. So yesterday of this one beta we discussed there P equal to here one relation is this one done P equal to this one. I am revising this one first. P equal to 1 by 3 rho c square. This is the pressure in form of the density. C is our RMS value. तो एक relation हमने ये निकाला था. Second relation we can derive by this one. RT equal to 3 by 2 mc square. So using this one we can write there 3. You can take this one side, then 3 by 3 RT mc square. Both side we are dividing with 2, then half c square. Half mc square. This one is your energy, and energy we can write there 3 by 2 RT. 3 by 2 RT. Okay, as we are multiplying this one divide by your Avogadro number, तो हमें रिलेशन पता है this one Avogadro number से अगर इसको डिवाइड करते then it will give us a one constant जिसको हम क्या कहते हैं Boltzmann constant. Okay, so this one energy we can convert into Boltzmann constant 3 by 2 kBT. This one. Okay, these relation discuss. One relation we have done their relation between your temperature and your RMS value. Temperature और RMS value के साथ relation किया था. From here RT equal to we can write there 1 by 3 mc square. By this one relation we can derive there C is directly proportional to the C will be directly proportional to the under root of the temperature. Okay, so by using this one derivation of the pressure exerted by the gas molecules, ideal gas molecules in any container. So these terms we have discussed with our first pressure, energy. What is energy there in form of here gas constant in form of the Boltzmann constant, then energy will be this one, and your relation between your RMS and your temperature will be this one. Okay, one relation we discussed there energy in form of this one 3 by 2 PV also we can write there. So these points we can write here. Average kinetic energy of the transition per molecule of the gas, that is E equal to 3 by 2 kT. Okay, done now already. Here I told you that is equal to your 3 by 2 kBT. Okay, तो इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल कितना होता है 3 by 2 kBT. kBT is your Boltzmann constant. Next your kinetic energy of translation per mole of the gas, that it will be your 3 by 2 R. Okay, R is your universal gas constant. For the given gas kinetic energy E will be directly proportional to the temperature. Kinetic energy क्या होती है directly proportional to temperature होती है. From here we can see here this one your energy will be directly with the temperature. E is 3 by 2 kBT. Okay, from this one relation we can say E will be directly proportional to our temperature. Okay, so here we can write there E is directly proportional to temperature. So this one ratio we can write there E1 by E2 equal to your T1 by T2. Two type of the gas we are taking, then whose energy E1 and E2, temperature T1 and T2, then E1 by E2 equal to T1 by T2. So next one root mean square value of the gas molecules. Root mean square value देखो हमने यूज किया था बेटा C इसके अंदर. C को हमने assume किया था, then it is the Vx square plus your Vy square plus your Vz square divided by your 3. This one is a square of this mean of all velocity. Okay, and this one square we will take this one side, then we can write there C will be under root Vx square plus your Vy square plus your Vz square divided by 3. So it will be your RMS. What is the meaning of this one? R root
मीन एंड स्क्वायर ऑफ दिस वन। सभी वेलोसिटी का जो आपके आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स है नॉट हैविंग बाउंडेशन, यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो इधर उधर मूव कर सकते हैं बेटा, रैंडमली इररेगुलरली दे आर मूविंग हियर एंड देयर। तो वेलोसिटी कैसी हो सकती है, एक्स के लोंग भी, वाई के लोंग भी, जेड के लोंग भी। तो हमने क्या निकाला था, सबका एवरेज निकाल लिया था। सो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स। सो हाउ वी कैन राइट दिस वन, स्क्वायर ऑफ दिस Vx, square of Vy, square along the Vz. Okay, then divide by 3. Why dividing 3? Because here we are finding mean of these velocity and taking under root. This one square is there, we will take this one side, then we will rotate. Root means square this one. Okay, and it will be a 3 by 2 RT by M. Okay, root means square value. So next one here, for the given gas, then C will be directly proportional to the under root T. अभी बताया था मैंने by using relation, C this one will be directly proportional to the T square. For the given different gases, C will be inversely proportional to the under root M. जो root means C क्या है बेटा, यहाँ पे RMS के लिए हम C यूज कर रहे हैं। ओके, C will be inversely proportional to the under root M. ये सभी रिलेशन आपके प्रेशर वाली जो डेरिवेशन किया उन्हीं से निकल के आए हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वी कैन राइट देयर R by N. R is gas constant, N will be your Avogadro number. Okay, then value of the Boltzmann constant will be equal to this one. ये किसके लिए constant value है, Kb की constant value बेटा 1.38 into 10 raised to power -28 joule per second. तो ये some points थे बेटा related to the pressure exerted by the gas molecule. ये आपको points learn करने हैं कि क्या क्या result आता है. This one is a result of this complete derivation. क्या क्या result आना, क्या क्या relation हमने drive किए, सभी relation का result है. Okay, so next one beta, our equipartition law of the gases. Okay, equipartition law of the gases कि क्या कहता है कि जो गैस होता है कि टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है along their different axes. Okay, so if there 3 by 2 kBT we have done, then along their all axes it will be divided into your same partition. Okay, so here we can write there along here, along x-axis kinetic energy we can write there 1 by 2 here m Vx square. Along here kinetic energy along y-axis we can write there 1 by 2 m Vy square. Along your z-axis then we can write there 1 by 2 m Vz square. ओके, तो सबकी जो टोटल है उसको इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो आउट ऑफ दिस वन वी कैन राइट देयर 3 by 2 kBT. We can write there 1 by 2 kBT along x-axis, 1 by 2 kBT along your y-axis, then it will be along your z-axis. कि जो एनर्जी है वो सभी की डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी देयर, दिस वन टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो सभी जो टोटल एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की वो सभी एक्सिस के अलोंग क्या होती है, इक्वल डिवाइड हो जाती है। दिस वन लॉ इज नोन एज द इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ द एनर्जी, कि हम एनर्जी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अलोंग ऑल फ्रीडम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, जितने भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके अलोंग इक्वल डिवाइड हो जाती है। ओके, दिस वन इज इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ द एनर्जी। सो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, Maxwell is a name of the person who told about their speed distribution, कि इस स्पीड को हम गैस लो जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स उनको 3 स्पीड्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज आवर एवरेज स्पीड, सेकंड इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड थर्ड वन इज आरएमएस स्पीड। आरएमएस हम पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब इनका मीनिंग क्या है कि इफ वी आर टेकिंग एनी कंटेनर, हमने क्या ले रखा है, एक कंटेनर ले रखा है, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हियर एंड देयर, दे आर मूविंग हियर एंड देयर, देन आउट ऑफ दीज ऑल मॉलिक्यूल्स, okay, then average speed of this one particle, if they are moving with this one here v1 v2 v3 and v1, ओके, इन सब की क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी है। तो मीन एवरेज स्पीड क्या कहता है, एवरेज ऑफ दीज ऑल स्पीड्स means sum of all velocities divided by number of velocity, then we will call it average speed. So v average we can write there v1 plus here u2 plus here u2 u3
एंड प्लस योर v1। सभी वेलोसिटी को हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी 3 3 6, देन डिवाइड बाय 6, देन इट विल गिव अस व्हाट, एवरेज स्पीड ऑफ द मोलिक्यूल। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, उनकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वी एवरेज इक्वल टू √8 kBT by m। ओके, दिस वन आवर average formula, average value of the gas molecules that are lie in our container। okay, most probable means out of these they are moving with a different velocity। तो इन सभी वेलोसिटी में मोस्ट प्रोबेबल कौन सी स्पीड है कि जिस स्पीड के साथ ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो दो पार्टिकल बेटा, 3 पार्टिकल्स तो क्या है, v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, एंड 2 particles moving with your v2 velocity and 1 is moving with your v3 velocity। so out of all these velocity, then most probable velocity will be your v1। okay, v1 because ये पार्टिकल भी v1 है, ये भी v1 के साथ मूव कर रहा है, ये भी v1 के साथ मूव कर रहा है, बाकी डिफरेंट वेलोसिटी के सब में से out of these most probable will be your v1। so this one formula how we can apply there, v most probable equal √2 kBT by m। okay, by using this one we can write like this one। next here root means square but now only told you that is equal to √ here vx square we can write there, vy square plus your vz square divide by your 3। if more than coordinate also will be there, then plus we will take, then write their mean, then √ of this one, then we will call it root mean square speed। so this one we can write there √3 RT by m। okay, I hope you understood better 3 type of the speeds that are given by the Maxwell, and we are calling it Maxwell speed। this ratio of this speed we can write there v average ratio, v most probable and v RMS। okay, this one ratio we can write there v average, that will be 8 by pi। okay, this one your 8 by pi ratio। then next will be most probable √2 and ratio here √3। this one is the ratio of these all 3 velocity। okay, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि यही पैटर्न में आपको शो करना है, this can become command forward backward forward। okay, so like this one we can find the different type of the Maxwell speed velocity। next one topic बेटा degree of freedom। okay, what is degree of freedom? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट वी आर डिवाइडिंग देयर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ओके, कि हम ये फाइंड कर सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकते हैं विदाउट एनी बाउंडेशन ऑन देम, दे आर फ्रीली मूविंग इन हाउ मच कोऑर्डिनेट। okay, the number of the coordinate independent coordinates of the gas molecules is known as the degree of freedom। okay, so now we will read this one। degree of freedom for the dynamic system is the number of direction that in which it can move freely, or number of coordinates required to describe completely the position and configuration of the system। कि अगर एक गैस मॉलिक्यूल्स है उसके कितनी कोऑर्डिनेट है बेटा, फॉर एग्जांपल दिस वन पार्टिकल इज हियर। अब इसके ऊपर क्या है, कोई बाउंडेशन नहीं है, इट कैन बी मूव अलोंग एक्स एक्सिस, कैन बी मूव अलोंग योर वाई एक्सिस, कैन बी मूव अलोंग योर जेड एक्सिस। तो किसी एक पार्टिकल की क्या है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंटली कितनी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, दैट वी विल कॉल इट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, दैट इज अ फ्रीली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कि दिस पार्टिकल कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, can be along y axis, can be along z axis। so 3 coordinates are there, then in which it can be moved here and there, so it will be degree of freedom will be equal to your, that is equal to your 3। I hope you understood beta। now if we are taking 2 particles connected with each other, अब एक ये पार्टिकल अब ये पार्टिकल है, यस ना, इन दोनों को क्या है एक स्टिक के साथ, एक इधर पार्टिकल एक इधर पार्टिकल है, दोनों को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब इसके फ्री कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं, अब क्या है ये दोनों आपस में तो आ नहीं सकते एक दूसरे के पास, या तो इधर जा सकता है इधर जा सकता है, देयर इज अ वन बाउंडेशन ऑन बिटवीन देम। क्या रहेगी, एक बाउंडेशन हो जाएगी इनके ऊपर कि इसके अलोंग ये नहीं जा सकता। सो लाइक दिस वन वी कैन फाइंड बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 3a माइनस ईयर r।
Okay, n equal to your n is degree of freedom. So n equal to 3a minus r. a क्या होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस की अगर बात करें, मोनोएटॉमिक गैस जिसके अंदर क्या होते हैं? सिंगल एटम होता है जिसका. ओके, मोलिक्यूल विल बी इक्वल टू वन ओनली. ओके, नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स वी हैव टू फाइंड आउट वन. फॉर एग्जांपल डायाएटॉमिक गैसेज वो होती है बेटा जिसके अंदर क्या होते हैं? दो मोलिक्यूल्स होते हैं. ट्राईएटॉमिक, दैट गैस इन विच योर थ्री मोलिक्यूल्स विल बी देयर, देन वी विल कॉल इट ट्राईएटॉमिक. क्लियर? तो ए क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वी कैन से, जिसके अंदर क्या हम फाइंड कर रहे हैं कि इतने पार्टिकल्स में कितनी बाउंडेशन हो सकती है. तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस ऑन 3 इनटू दैट पार्टिकल माइनस आर. आर क्या होती है? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस. इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है? कितनी रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर? क्लियर? लाइक दिस वन वी कैन राइट इट. सो हियर फॉर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ऑफ दीज टर्म्स वी विल फाइंड देयर डिग्री ऑफ फ्रीडम. फॉर द मोनोएटॉमिक विल बी 3. सो हाउ वी कैन राइट देयर f इक्वल टू 3n माइनस k. Okay, f equal to 3n minus f is your degree of freedom, as is n is number of the molecules, number of particles in gas, and k is your restriction. Okay, so f we were find out for the monoatomic. First हम find करें monoatomic gas के लिए. So how we can find their monoatomic gas? तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा? 3 विल बी देयर. हाउ वी विल राइट देयर 3? सो f इक्वल टू यर 3n माइनस k. अभी बताया n क्या होगा? नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विच आर लाई इन टाइप ऑफ द गैस. किस टाइप की गैस है आपकी? मोनोएटॉमिक गैस है. तो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर n क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा. सो एंड रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन रहेगी? बाउंडेशन है क्या एक पार्टिकल के ऊपर? कोई बाउंडेशन ही नहीं है. कैन बी मूव अलोंग एनी एक्सिस. सो बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0. Without boundation moving here and there, so f will be equal to, here putting here in this formula 3, n will be equal to 1 and this one equal to 0, then it will give us 3. So degree of freedom for the monoatomics will be equal to 3. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम. देखो सिंपल सा तरीका, डिग्री ऑफ फ्रीडम है कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने जिसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं. अब कोई बाउंडेशन ही नहीं है हमारे ऊपर. क्या है, अगर आप स्कूल में आ रहे, स्कूल में क्या होता है कि यू हैव टू मूव इन वन लाइन ओनली, मीन्स आपके ऊपर बाउंडेशन आ गई बेटा कि आपको लाइन में ही मूव करना है. ओके, बाउंडेशन आ गई तो कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं? यू शुड बी मूव इन लाइन ओनली. Like this one we can find there. Okay, if you are not having foundation, कि आपको कोई टीचर ही नहीं हैंडल करने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहाँ जाना, लाइन में चलना है कि नहीं चलना, तो आप क्या करोगे? Here and there you can move. Any axis you can change. X के लोग भी चल सकते हो, Y के लोग भी चल सकते हो, Z के लोग भी चल सकते हो. कोई बाउंडेशन ही नहीं है. That you can move in any direction. Okay, that's why. तो कितने कोऑर्डिनेट होंगे जिनमें आप मूव कर सकते हो? तो मैक्सिमम कितने होंगे? 3 कोऑर्डिनेट्स in which you can move there. ओके, सो लाइक दिस वन वी कैन फाइंड. ये भी गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें, ऐसे गैस पार्टिकल्स है, डिफरेंट गैस हम लेके चल रहे हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, लीनियर एंड नॉन लीनियर. तो इन केसेस में हम कैसे फाइंड करेंगे? f बाय यूजिंग दिस वन. ओके, कि इस तरीके से n क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल. मोनो से ही पता चल रहा है. मोनो का मीनिंग क्या होता है? 1. मोनो पार्टिकल्स है. के कोई बाउंडेशन नहीं, इसलिए हमने क्या लिया? 0 लिया. अब इधर पुट कर देंगे तो आपके पास पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा. देखो इधर आप ये कहोगे कि यहाँ पे f यूज कर रहे थे, यहाँ पे n यूज कर रहे हैं, तो बेटा ये सिंबल होते हैं. सिंबल आप ये भी सिंबल ले सकते हो. यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n के लिए गिवन है, a नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है. सो हियर अगेन आई रिटन, सो f लेटर ऑल्सो यू कैन यूज फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड n लेटर वी कैन यूज देयर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स which are lying in the gas. Okay, now next one for the diatomic. हम find कर रहे हैं diatomic के लिए. Okay, diatomic के लिए कैसे find करेंगे? use this formula only for the diatomic. diatomic के लिए हम find करेंगे, again we are using f equal to 3n minus k. n will be
नंबर ऑफ द पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो डाया एटॉमिक, डाया मीन्स 2 विल बी देयर। डाया के लिए हम 2 यूज कर सकते हैं, n इक्वल टू 2 ओनली। नाउ k विल बी अगेन रिस्ट्रिक्शन। अब डाया एटॉमिक है बेटा, इसके ऊपर देखो फॉर एग्जांपल दिस वन, ये 2 एटम है ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसके एग्जांपल मोनो एटॉमिक के लिए आप ले सकते हो हीलियम, नियोन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मोनो एटॉमिक। डाया के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के एटम क्या होते हैं, 2 होते हैं, हैविंग अ 1 बॉन्ड बिटवीन देम, ये O ये O, 2 एटम है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड होगा। तो रिस्ट्रिक्शन होगी कि आपस में आ नहीं सकते एक दूसरे के पास। तो कितनी रिस्ट्रिक्शन होगी, एक रिस्ट्रिक्शन होगी इसके पास। सो हियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस वन विल बी 1, कि आपस में किधर भी जा सकता है, ये क्या है, कहीं भी जा सकता है, पर यह आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकता। If there restriction, we have to find out how many restriction will be there. Then k will be equal to 1, 1 restriction will be there. So find out there f equal to 3 n minus k, n will be equal to number of the atoms. How many particles are there, diatomic में कितने particles है, 2, कि हमने example assume किया है ऑक्सीजन O2 will be there. Now oxygen will be O2, then there 2 particles are there of the oxygen, so O2 2 आर देयर। तो इसके ऊपर बेटा ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बट एक बाउंडेशन आ गई कि ये आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। कि अगर मैंने एक पार्टिकल इधर रखा हुआ है, एक पार्टिकल इधर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। कितनी रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, इनको ऐसे ही चलना है, इतने ही गैप के साथ चलना है, दे नेवर बी कम विद ईच अदर। ओके, सो हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन विल बी देयर, 1, कि तो k क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसके अंदर, डाया में 2 है गैस particles. So here by using this one f we can write there 3, then n will be equal to 2, then k will be equal to 1. Okay, तो इसको सोल्व कर देंगे आपके पास, then 6 minus 1, then it will become equal to 5. So f क्या आ जाएगा, there will be equal to 5. तो डायाटॉमिक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, 5 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होते हैं। दे कैन बी मूव हियर एंड देयर विद द 5 कोऑर्डिनेट। अब कहोगे 5 कौन से कोऑर्डिनेट आगे, बेटा 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और 2 क्या होंगे, रोटेशनल मोशन के लिए। ये रोटेट भी तो कर सकता है, हैविंग 3 टाइप ऑफ द मोशन ना, फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन, देन सेकंड विल बी रोटेशनल मोशन, थर्ड विल बी वाइब्रेशनल मोशन। तो 3 तो इसके क्या आगे, ट्रांसलेटरी मोशन, कि x के लोग मूव कर सकता है, y के लोग मूव कर सकता है, z के लोग मूव कर सकता है। बाकी बचे 2 क्या होंगे, रोटेशन मोशन, की रोटेट भी कर सकता है। Okay, like this one there will be 5 coordinate, independent coordinate will be there in which it can be move there. Okay, I hope you understood beta for mono and diatomic. Now next will be there triatomic. ट्राईएटॉमिक, अब ट्राईएटॉमिक के लिए हम फाइंड करेंगे, ट्राईएटॉमिक के लिए बेटा 2 टाइप की होती है, नॉन लीनियर और लीनियर। नॉन लीनियर और लीनियर कैसे होती है, देन इन दैट केस लीनियर विल बी देयर इफ ऑल आर लाई लीनियरली। ओके, सभी क्या लाई कर रहे हैं, लीनियर में लाई कर रहे हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर हाउ वी कैन राइट देयर, like this one, n3 we can say 1 is here, second is there, third is there, 3 particles are there and they are bound with each other with like this one bond. इस तरीके से क्या है, ये बाउंड है एक दूसरे के। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, लीनियर होगा। और नॉन लीनियर कैसा होगा, नॉन लीनियर, देन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज विल बी लाइक दिस वन। इस तरीके से आपके 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन होगी उस पे क्या कहेंगे हम, नॉन लीनियर। ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन फॉर द नॉन लीनियर। सो ट्राईएटॉमिक, फर्स्ट वन लीनियर एंड सेकंड विल बी नॉन लीनियर। दोनों के लिए फाइंड करेंगे हम। कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर के लिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि एक इधर पार्टिकल है आपका, एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है, तो तीनों में क्या होगा, बॉन्ड आपका इस तरीके से बनेगा।
तीनों पार्टिकल्स में इस तरीके से बॉन्ड कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन विल बी देयर, अगर आप ऐसे बाउंडेशन कर रहे कि 3 मॉलिक्यूल्स आर देयर, वन इज हियर, वन इज देयर, वन इज देयर, देन बॉन्ड बिटवीन देम विल बी वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, थर्ड विल बी दिस वन। ओके, तो यहाँ पे क्या बाउंडेशन आ गई कि इधर तो बाउंडेशन की ये इसके पास नहीं आएगा, इधर बाउंडेशन आ गई कि इसके पास नहीं आएगा, तो रिस्ट्रिक्शन कितनी आ गई इसके अंदर 2। देखो दोनों में नंबर ऑफ द ट्राई एटॉमिक की अगर हम बात करें तो ट्राई एटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल रहे ना, ट्राई एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम वी हैव टू फाइंड आउट, सो F इक्वल टू 3n माइनस k, दिस इज आवर फॉर्मूला। तो n क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट वी विल राइट देयर n इसके अंदर कितना है, वन इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन, 3 पार्टिकल्स आर देयर, दैट्स व्हाई n वी विल राइट देयर 3। इसके अंदर भी कितने हैं, n इक्वल टू 3। ओके, नाउ हियर रिस्ट्रिक्शन इज देयर, ये इसके पास नहीं आएगा, ये इसके पास नहीं आएगा, आपस में पास नहीं आएंगे, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि x के लॉन्ग भी मूव करे, y के लॉन्ग भी मूव करे, z के लॉन्ग भी मूव कर सकता है, ये क्लियर, और रोटेशनल भी मूव कर सकता है, बट एक दूसरे के पास नहीं आएगा। अब पहले 2 थे, अब क्या हो गए, 3 हो गए, तो रिस्ट्रिक्शन एक तो ये रिस्ट्रिक्शन होगी, एक ये रिस्ट्रिक्शन होगी, तो कितनी हो गई 2। ओके, सो नाउ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, हाउ वी कैन फाइंड 3n माइनस k। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कितने कोऑर्डिनेट्स में ये मूव कर सकता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। ओके, सो हाउ वी कैन राइट हियर 3 n will be 3 and restriction will be equal to 2. So solve this one, then it will be give us 9 by minus 2, then it will give us 9 minus 2, then it will give us 6. So degree of freedom for the linear, then it will be equal to 6 only. Okay, now for the non-linear के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे क्या था, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ हमारा नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पार्टिकल है, जिसको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से उनका अरेंजमेंट हो रहा है। सो लाइक दिस वन अरेंजमेंट, सो F वी कैन राइट देयर 3n माइनस k free coordinates which are moving like this one. Okay, so n in that case again it will be 3, क्योंकि ट्राई एटॉमिक की पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो ट्राई एटॉमिक के लिए n क्या रहता है, 3 रहेगा। सो के रिस्ट्रिक्शन विल बी देयर, हाउ मेनी रिस्ट्रिक्शन, अब देखो इसके अंदर एक तो रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि ये आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, 1, सेकंड इनके बीच में भी रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेशन है कि एक दूसरे के पास ये भी नहीं आ सकता। एक बाउंडेशन क्या होगी, एक इधर बाउंडेशन होगी, तो कितनी बाउंडेशन होगी बेटा इसके अंदर कि एक तो इधर बाउंडेशन होगी 1, 2 एंड 3, कि ना तो ये आपस में आ सकते, ना ये इधर आ सकता, ना ये इधर आ सकता, 3 बाउंडेशन आर देयर, रिस्ट्रिक्शन आर 3, सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन राइट देयर 3 ओनली एंड k इक्वल टू आवर 3। अंडरस्टूड ना, सिर्फ आपको पता है n और k फाइंड करना है, n तो वेरी करेगा जितने आप एटम ले रहे हैं, मोनो एटॉमिक गैस है या आपके पास डाई एटॉमिक गैस है या ट्राई एटॉमिक गैस है। ओके, मोनो का मैंने एग्जांपल बताया कि हीलियम, नियोन, दीज आर गैसेस और मोनो एटॉमिक। डाई कैसा होता है कि डाई जिसके अंदर 2 टाइप ऑफ द एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ट्राई यू कैन से देयर N3, नाइट्रोजन के अंदर कितने होते हैं, N3 होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। तो के आपको रिस्ट्रिक्शन देखनी, कितनी बाउंड लग रहा है उसके ऊपर, कितनी बाउंडेशन है, उसके बाद सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बेटा, फॉर्मूला लगते ही क्या निकल जाएगी आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, 3 3 जा 9 माइनस 3, देन इट विल गिव अस 6 ओनली, हियर विल बिकम 7 बेटा, बाय मिस्टेक रिटन 6 7। ओके, सो हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 6। I hope you understood beta how we can find their degree of freedom. Then like this one way we can find their for the monoatomic, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक देन इट विल बी 3, फॉर डायएटॉमिक देन इट विल बी 5 एंड फॉर ट्राइएटॉमिक देन इट विल बी अ नॉन लीनियर, लीनियर 2 में हम डिवाइड कर रहे हैं, देन इट विल बी 6 एंड 7। तो इक्विपार्टीशन की अगर हम बात करते हैं तो गैसेस के अंदर, तो ये इसकी जो गैस होती है वो 3 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड होती है, इसकी जो गैस है वो 5 कोऑर्डिनेट में डिवाइड होती है, 5 एनर्जी जो होगी दैट इट विल बी 5 by 2 kBt, देन लाइक दिस वन हियर 3 by 2 kBt, तो ये इसका 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका 5 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस वन 6 by 2 kBt, इट विल बी 7 by 2 kBt। ओके, देन वी विल डिवाइड ऑल these energies in equal part, then we will call it equal partition of the gases. Okay, I hope you understood beta this one degree of freedom. So in our next class we will discuss their specific heat and gamma also. In thermodynamics we discussed already gamma. Gamma is a ratio of the
Cp बाई Cv। ओके, हमने निकाला था गामा, तो गामा उसके अंदर कांस्टेंट डायरेक्ट यूज किया था। अब हम फाइंड करेंगे कि कैसे गामा निकलता है स्पेसिफिक हीट यूज करते हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।